یہاں الیکٹرانک کی مارکیٹ میں نا ایک صاحب میرے پاس ہے، پرانی سی بات ہے، کہنے لگا میرے پاس کالا جادو ہے، یوں ہاتھ ڈالتا ہوں ہاتھ میں تعویذ آ جاتا ہے، یوں ہوتا ہوں مینڈک آ جاتا ہے، یوں ہوتا ہوں ہاتھ میں کاغذ آ جاتا ہے، یوں کہتا ہوں انگور آ جاتا ہے، یوں کہتا ہوں یہ آ جاتا ہے۔ بڑی بڑی گاڑیوں والے میرے پیچھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دنیا میرے پیچھے ہے کہ ہمارا کام کر دیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میرا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل سیاہ اور مرا ہوا ہوتا ہے، یا پھر چند گھنٹوں یا چند دن کے بعد مر جاتا ہے، اس کا جسم بالکل کالا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ایک دفعہ ایسا ہوا، دوسری دفعہ ایسا ہوا، پھر تیسری دفعہ ہوا، اب چوتھی بار ہوا ہے، اور چوتھی بار میں میرا دل دہل گیا ہے، مجھے ایک خیال آنا شروع ہو گیا ہے، یہ تو میرے بچے کی صورتحال یہ ہے، میں جب مروں گا پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو دنیا میں بڑی واہ واہ ہو چکی ہے، بہت واہ واہ ہے، بڑی بڑی گاڑیوں والے بڑے مال بڑے تحفے لے لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور بہت چیزیں لے لے کے میرے پاس آتے ہیں، بہت چیزیں لے لے کے میرے پاس آتے ہیں۔ یہ تو یہاں کی صورتحال ہے، میرے ساتھ کیا بنے گا؟ تو کہا یہاں میں رش دیکھتا رہتا تھا، کئیوں نے روکا دکانداری ہے، 2 نمبری ہے، کئیوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، کہا میں پھر آپ کے ہاں آنا شروع ہو گیا، اور بچ بچ کے مجمع میں ایک طرف بیٹھنا شروع ہو گیا، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، چلو تماشا تو دیکھا ہے۔ تو حال کرتے کرتے آپ کی بات میرے دل میں اتر گئی، اب میں واپسی کا راستہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، واپسی کے راستے سے پہلے مجھے اپنے علم کے کمالات دکھا، کالے علم کے۔ تو کالا علم حاصل کیسے کیا؟ کہہ رہا میرا استاد تھا، وہ یہاں ساندہ ہے لاہور میں ایک جگہ، وہاں رہتا تھا، تو میں نے وہ علم اس سے سیکھا، اور وہ کہتا تھا کہ پیشاب کا آخری پیشاب ہاتھ میں لے کے اسی کا استنجا کرنا ہے، جتنا تو ناپاک ہوگا اتنا علم طاقتور ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، نوری علم قرآن کا علم جتنا پاک ہوگا اتنا طاقتور ہوگا، اور کالا علم جتنا ناپاک ہوگا اتنا طاقتور ہوگا۔ اس علم کے لیے طہارت چاہیے، اس علم کے لیے نجاست چاہیے، اس علم کے لیے پاکی چاہیے، اس علم کے لیے ناپاکی چاہیے۔ تو اس کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے، اس کی نسبت رحمان کے ساتھ، اس کی نسبت شیطان کے ساتھ، اور اس کی نسبت رحمان کے ساتھ، اور کملی والے کے ساتھ ہے، کملی والے کی آل و اصحاب کے ساتھ ہے۔ کہنے لگا کہ میں وہ چیزیں دکھا دیتا ہوں، وہ کمالات۔ کہنے لگے لوگوں کے کام ہوں یا نہ ہوں، لوگ کہتے ہیں بس کوئی سرکار کچھ بکھاؤ، کچھ دکھائیں، لوگوں کو صرف تسلی چاہیے۔ اور مجھے کہنے لگا آپ جو لوگوں کو بتا دیتے ہیں نا یہ وظیفہ اور تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ اور تسبیح عمل، یہ جو بتا رہے ہیں، یہ جیسے اس نے بڑا لفظ اچھا کہا کہ لفظ جو ہوتے ہیں نا کالے جادو کی کاٹ، دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کہا یہ کالے جادو کی کاٹ تو آپ کر رہے ہیں، وہاں ہماری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری طاقتیں ختم ہو جاتی۔ نہیں میرے پاس مال کی ریل پیل، دولت اور پیسے کی ریل پیل، کون بندہ ہے جو مال دولت اور پیسہ، میرے پاس تو مال ہی مال، دولت ہی دولت، پتہ نہیں کہاں جاتا تھا۔ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کثرت تھی برکت نہیں تھی۔ بہت مال، کتی بچے بہت دیتی ہے، کثرت ہوتی ہے پر برکت نہیں ہوتی۔ میں نے زندگی میں بڑی سفر کیے ہیں، میں نے آج تک کوشش کی ہے دیکھوں کہ سڑک کے کنارے کتے مرے ہیں یا کوئی بکری کا ایک بچہ بھی مرا ہوا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں بکری کا بچہ مرا ہو، کتے مرے بڑے دیکھے۔ کہا کہ میرے پاس عالم یہ ہے کہ ایک بندے نے مجھے اپنی کوٹھی کی چابی دے دی، اسے وحشت ہوتی ہے،
फिर मैं अपनी जो कोठड़ी है उसमें रहता हूं, वो किराए पे दे दी मैंने, फिर उसका किराया आता है, पैसा कहां जाता है मुझे खबर नहीं, माल आता है कहां जाता है। कहने लगा कोई वापसी है? मैं कहा 100% वापसी है, मौत से पहले तो सारे तौबा के दरवाजे खुले हैं। उस करीम ने अपनी जात का रुजू इतना आसान बनाया है, इतना आसान बनाया है, सिर्फ एक बार बंदा जब दुनिया जमीन पे कहते हैं ना, मेरे साथ कहिएगा या अरहमर राहिमीन, बस 3 बार अर्शों से शहनशाह करीम पुकार के कहते हैं, रहमान और रहीम, रब को पुकारने वाले बंदे मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता। 3 बार, 3 बार ऐसा उसने तो अपनी जात की तरफ रुजू बड़ा आसान कर दिया। आसानियां हैं। उस दुनिया में सबसे ज्यादा आसान दोस्ती है मेरे रब की, सबसे ज्यादा आसान दोस्ती मेरे रब की है, और सबसे ज्यादा आसान मोहब्बत के रास्ते मेरे रब के हैं। बाकी तो दोस्तियां बड़ी मुश्किल हैं। माँ भी कहती है इसको मेरे जनाजे में ना आने देना, बाप भी कहते हैं इसको मेरा चेहरा ना दिखाना अगर नाराज हो जाए, और करीबी रिश्तेदार भी कहते हैं कि इसको मेरे जनाजे में मेरे दरवाजे के अंदर ना आने देना। हालांकि वो कितनी बड़ी ज्यादतियां नहीं होती, और मेरे रब के साथ सारी ज्यादतियां करके ना अल्लाह ने एक कुरान की आयत बयान की है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इसकी पता है मिसाल कैसे है? एक निहायत नाफरमान बागी दुश्मन तरीन शख्स आए, फिर उसको गोद में बिठा के ना उसके मुंह करीब करके, और उससे मोहब्बत भी हो और शिकवा भी हो, मोहब्बत भी हो और मोहब्बत और शिकवे के इस मुले जुले अंदाज में उससे कहा जाए, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐसे करीम रब से तुझे आखिर किस चीज ने दूर कर दिया, तू मुझसे दूर क्यों हुआ? और यही बंदा फिर रब को छोड़ देता है, और मैं अल्लाह उसके पीछे जाता है। अल्लाह कहता है मुझसे बड़ा करीम दुनिया में तुझे कोई मिलेगा, मुझसे बड़ा करीम मिलेगा। मुझे फिर छोड़ के चला गया। और फिर जब बंदा ये फिर अल्लाह की तरफ लौटता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं जन्नत को आरास्ता करो, ऊद की धुनियां दो, खुशबुएं महकाओ। फरिश्ते पूछते हैं मौला आपकी मंशा क्या है? फरमाया मेरा एक बंदा रूठा हुआ था, उसने मुझे मनाने का इरादा कर लिया है, बस वो मेरे पास आ गया है, वो आ गया है तो जन्नत को रास्ता कर दो, मेरा दोस्त मेरे पास आ रहा है। और रहमत कमाल की है, अल्लाह बढ़ के उसका इस्तकबाल करता है, आगे बढ़ के इस्तकबाल करता है। दुनिया की सबसे आसान दोस्ती है ही उस करीम की, उस शहनशाह की, उस लखपाल और लजपाल की सबसे आसान दोस्ती उसी की है ही उसी की। मुझसे कहने लगा कि कोई वापसी का दरवाजा में खुला हुआ। मुझे बड़ी अजीब बातें बताई हैं, आप नहीं सोच सकते। मुझसे कहने लगा कि लाहौर में जहां जहां कूड़ा डालते हैं, गंद डालते हैं, लाहौर का गंदगी डालते हैं, मैं रातों को वहां बेबहा जिंदगी मेरी गुजरी है। इसका ताल्लुक, कहने लगा जो गंदगी में, गंदगी की जगह पे हमारा इल्म ताकतवर होता है, वो पाक जगह पे नहीं होता। वो कहता था कि शहर का गंद जहां सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, मैं उस शहर की गंदगी पे जाके वहां बैठा रहता हूं। फिर मेरे 1-2 दोस्त हैं, हम जाते हैं वहां बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर वहीं बैठते हैं। मैंने कहा गंदगी बदबू, कह रहे हमें बदबू नहीं आती, हमारे लिए वहां सुकून और राहत का सामान है। और मुझसे कहने लगा कि मुझे मस्जिद की दीवार से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अंदर तो दूर की बात है, अगर मैं मस्जिद की दीवार से गुजरता था या गुजरता हूं, उस वक्त हूं की बात कर रहा था, गुजरता हूं, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तकलीफ होती है। और कहा कि तस्बीह खाने से बहुत तकलीफ होती है, घबराहट होती है, और मेरा जी चाहता है कि बस ऐसे गुजर जाऊं। और मुझे उसने अजीब बात कही, कहा कि नेक और बद की कब्र का मुझे पता चल जाता है।
तुझे कैसे चल जाता? ये नेक की कब्र है, ये बद की कब्र है, ये जन्नती की कब्र है और ये जहन्नमी की कब्र है, मुझे पता चल जाता है। कहा क्यों? मैंने पूछा क्यों? कहने लगे कि जो नेक की कब्र है उसके ऊपर नूर बरस रहा होता है, क्योंकि मस्जिद में भी नूर बरस रहा होता है, कुरान पे भी नूर बरस रहा होता है, उसकी कब्र पे भी नूर बरस रहा होता है। और नूर हमारे इल्म की काट है, और हमारी काट है, नूर ऐसे है जैसे हमें तलवार से काट देगा और हमें जुदा कर देगा। नूर ऐसा हमें टुकड़े टुकड़े कर देगा वो नूर। कहा कि फिर कब्र हमें बताती है, बास कब्रें ऐसी होती हैं जिनकी तरफ जाते हुए कशिश होती है। आपने एक चीज महसूस की, क्राइम की दुनिया अक्सर कब्रिस्तान में ज्यादा होती है, जराइम की दुनिया अक्सर कब्रिस्तानों में ज्यादा होती है। उनको बहुत कब्रें उनकी तरफ कशिश का जरिया बनती है, कशिश का जरिया बनती। हत्ता के कब्रों के अंदर, खोखली कब्रों में उनका उठना बैठना भी होता है, उन्हें कोई खौफ नहीं होता। खोखली कब्रों में उनका उठना बैठना, उनके लिए कोई खौफ नहीं है। कहते हैं मुझे नापाकी में मजा आता है। कब्रिस्तान में वो कब्रें, जो कब्रें उसने अल्फाज इस्तेमाल किया जो ठंडी नहीं होती, गर्म कब्रें, अल्लाह ना करे, जिनके अंदर आग होती है। मुझे मजा आता है, मैं वहां रहता हूं, मुझे पता चल जाता है, मैं वहां रहता हूं, मुझे पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है, मैं वहां रहता हूं। मेरी जिंदगी दिन रात वहीं गुजरती है। बस 4 अमवात ने, 4 मौतें ऐसी हुई मेरी बच्चों की, उन 4 मौतों ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। फकत मेरा हाथ चल रहा था, उन्हीं का मतलब निकल। मैंने कहा पीट कर, और मैंने पीट रख के ना तसव्वुर किया और अपनी निस्बतों का तसव्वुर किया, जिन औलिया, सुलहा, आले रसूल, असहाब रसूल और अल्लाह के हबीब तक निस्बतें, और अल्लाह तक उनका जो बड़ों के साथ निस्बत ही, उनका तसव्वुर किया कि अल्लाह जो उनकी तरफ नूर है, वो नूर ऐसे इसके दिल में मुंतकिल कर दे, वो नूर सारा का सारा उन निस्बतों का। बस ये निस्बतें थी। और मैंने दरूद पाक पढ़ा और सरकार की जालियों का, और सरकार के जो शेखैन साथ 2 सोए, हजूर की जालियों का तस्वर उनका करके पढ़ा। बस ऐसे तमें चंद लम्हों के अंदर ही, शायद मैंने 1 बार दरूद पाक पढ़ा हो या 2 बार पढ़ा हो, 3 दफा का मैं गुमान नहीं कर सकता। और वो मुंह से मुसलसल निकलने लगा। और उसके बाद फिर रोया वो बहुत ज्यादा, और रोने के बाद उसका जिस्म जब हल्का हुआ तो मैंने कहा सुनाओ दरूद। दरूद पढ़ रहा था और वो वाकई झूम रहा था। उसका झूमना मुझे याद है, और उसके दरूद के अंदर वजद और विजदान था, और वो 100% झूम रहा था। उसको जैसे कहते ना हाल आ जाना, हाल, वो वाकई हाल था। कहा वजीफा, मैंने कहा वजीफा है दरूद या तेरा, यही पढ़, यही पढ़, और दिन रात पढ़। दरूद का नूर सारी जुल्मतों को धो देता है, सारे के सारे काली दुनिया को खत्म कर देता है दरूद का नूर। आज भी वो बंदा तस्बीह खाने में आता है, अभी भी बैठा है, और अल्लाह का निजाम देखें। अल्लाह ने उस दरूद पाक के नूर की बरकत उसको ऐसी अता की, ऐसी अता की, सारी काली चीजें खत्म हो गई। फिर अल्लाह ने औलाद दी, बेटे बेटियां दी, नेमते रिज़्क दिया। कुछ अर्सा पहले तक उसको थोड़े से हालात आए, मैंने कहा मजबूत रहना, पक्के रहना। मैं उसकी खिदमत भी करता रहा, उसका साथ भी देता रहा, पक्के रहना, और वो डगमगाया नहीं, चलता रहा। फिर जो रब ने राहत और रहमत के, रिज़्क और वुसअत के और बरकत के दरवाजे खोले, फिर जो रब ने खोले। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।